Up to now, we have done with the 3 units of our chemistry. That is your chemical reactions. Then we did the acid, base, and salt. And then we did with the your metals and non-metals. Your chemical reactions, there is, I'm repeating you, although I have given you the deduction portion on the WhatsApp group. Your chemical reactions and equations, nothing deleted. पूरा चैप्टर जो कुछ भी हमने किया है everything is coming over there. Then your acid, base and salt, complete chapter is coming. No deduction is there. Then your metals and non-metals. In that case, your unit from the extraction of ores up to the last. That is your extraction of ores and corrosion. These two parts are being cutted from the metals and non-metals. यहाँ तक everyone is clear? What is coming and what is deleted? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. coming to the your Yes, ma'am. okay, coming to the carbon and its compound. I hope everyone has kept their NCRTs with you. सबके पास उनकी NCRTs है, isn't it? Yes, ma'am. But I am Yes, not. ma'am. My NCRT is in school. So just look over here, beta. In the NCRT from this unit, the topic where is written the nomenclature of carbon compound. This 4.2.5 nomenclature of carbon compound you are looking. This topic is being cutted. Cut it, beta. After this, 4.3, that is chemical properties of carbon compounds. This topic. Cut this topic also. Okay. That much topic is being cutted. ये दो topics जो हैं, they are cutted from the this year exams. समझ में आ गया सबको? Any question? मैम ये नॉमेनक्लेचर के बाद तो पूरा चैप्टर नहीं आ रहा. बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज कटेड है. लास्ट में हमारे पास सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है, तो दैट आई विल चेक वंस अगेन कि वो हमें करने हैं या नहीं करने. अदर बिकॉज उसके अंदर सिर्फ हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, सिर्फ ये पोर्शन बचता है हमारे पास. तो मैम ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये नहीं करनी है फिर? नहीं, ये नहीं करनी बेटा. ओके मैम. अप टू 4.3.4 आपको नहीं करना है. ओके यस मैम. ओके फाइन. So today let's start with the introduction of the carbon and its compound. छोटा सा एक brief discussion आज हम करेंगे of the carbon and its compound. So keep your NCRTs open. The important point I am going to tell you, just note down in the NCRT itself. कोई ऐसा point है जो आपको NCRT में नहीं मिलता है and I am saying to note down in the book itself. Okay. Oh, sorry. Okay, fine. Now, carbon and its compound. In the carbon and its compound, we say that carbon is a element. This carbon is a element with a symbol C, capital C. It belongs to a category of the non-metals. ये एक non-metal है. Now, we say that this carbon, it is a main constituent
of coal. And we say the amount of carbon present in earth crust and atmosphere, it is very small, बहुत कम quantity के अंदर it is present over there. Now we say besides this that why it is so important, carbon compounds की importance क्यों है, or why we are including them in the organic compounds. We are saying that all the living things means your plants, animals, जितनी भी living things हैं, they are made up of carbon based compounds. They all are the carbon based compounds. और क्योंकि वो carbon based compounds होते हैं, we call them as a organic compounds. Okay. Now, besides this, large number of things which we are using in our daily life, काफी सारी ऐसी चीजें जो आप daily routine में use करते हो, they are made up of the carbon compounds. And therefore we say that carbon plays a important role in our daily life. अगर मान लो आपको टेस्ट करना है the presence of the carbon in a material, कि आपको ये देखना है कि आपका जो भी given material है there is the carbon is present or not. So what you are going to do, you can do what, that you take that particular compound, you burn it in the air. आपका जो भी compound है आप उसको air में burn करो. When you are going to burn it in the air, it is going to give the carbon dioxide. वो जो गैस निकल रही है उस गैस को if you are going to make it pass through the lime water, then your lime water is going to turn the milky. This turning of the lime water into a milky, it shows the presence of the carbon compound. This much is clear to everyone? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. okay. Yes, Just- ma'am. Just brief introduction today we will do. ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में आज हम. Now when we are talking about the carbon, हमें ये पता लग गया that we can symbolize it with the capital C. If we talk about the atomic number of the carbon is 6. According to that, इसकी electronic configuration क्या हो गई? 2, 4. Now this 2 electrons means they are going to enter the first principal shell, जिसको आप बोलते हो K, and it is going to enter in the second principal shell, which is the L. Okay. According to this, we are going to say that these 4 electrons are the valence electron. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम उनको बोलते हैं which are present in वैलेंस शेल, जो आपके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Now what we are going to say कि on the basis of this, हमेशा आप एक बात याद रखना कि जो आपके ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एलिमेंट कोई रिएक्शन करता है, बॉन्ड बनाता है, तो सिर्फ ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो परी बेटा, only the points which are not included in NCERT, write down that in your book itself. अपनी बुक में ही लिखते जाना आप. आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये बात याद नहीं रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप बुक में लिख लीजिएगा. नाउ आई वाज टेलिंग यू कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम बोल रहे हैं, जब भी आपका कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाते टाइम में सिर्फ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं. इट मींस कि कार्बन के केस में जो भी बॉन्ड बनेगा
ये 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, that is somewhat तनिष को बंद कर लो. आपकी your periodic table is somewhat like this. Okay, now what we say कि जितने भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ले, इनर्ट गैस की. आपकी इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो ये लास्ट वाला जो ग्रुप होता है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. आई एम राइटिंग ओवर हियर helium, wait a minute, that is your helium, neon, argon, krypton, xenon. ओके, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, वो ये कोशिश करते हैं कि जो उनके पास वाली ये इलेक्ट्रॉनिक गैस है, इसकी इनर्ट गैस जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें. उसके अकॉर्डिंगली इट मींस कि ये क्या कोशिश करेगा कि यहाँ पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. ओके, नाउ what is going to happen, it is very difficult कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे सारे के सारे, या किसी से ले ले. तो what going to happen कि जो कार्बन हो गया, it always prefer to share the electron. से सपोज आपकी क्लास के अंदर कभी आपका कोई फ्रेंड कोई चीज नहीं लेके आया है, सो यू नेवर गिव एवरीथिंग टू हिम, या आप ऐसा भी नहीं करोगे कि आप कुछ भी ना दो. what you are going to do, you are going to do the sharing. so same thing happens over here कि कार्बन क्या करता है, it shares its electron. now जब भी कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, तो by the bond formed by the sharing of the electron is called as the covalent bond. ये पॉइंट समझ में आया टू यू पीपल? यस मैम. ओके, अब मैं एक बारी आपको ब्रीफली कोवैलेंट बॉन्ड फिर से रिवाइज कर देती हूँ, डिस्क्राइब कर देती हूँ. कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली डेवलप होता है बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4. इट मींस कि कार्बन को यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कितने 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कंपाउंड बनाता है CCl4, मींस यू आर हैविंग द 4 Cls. नाउ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287. अगर इनको अपना कंपाउंड बनाना है, मींस इफ दे वांट टू मेक अ CCl4, तो हर एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है एक एक, तो कार्बन तो डिससैटिस्फाई हो जाएगा. सो व्हाट दे डू, they simply do the sharing of the electrons. when they do the sharing of the electrons, तो क्या हो जाता है कि इसका एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, हर एक क्लोरीन के साथ शेयर हो जाता है, एंड हर एक का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाता है. therefore
दोनों की वैलेंसी जो है वो satisfy हो जाती है and they make a stable compound. This type of the bond which is formed by the sharing of electron is called covalent bond. Now the next point which we should know is what कि carbon is tetravalent in nature. ये बहुत important point है. Carbon is tetravalent in the nature. Why we say that it is a tetravalent in nature? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है that is 4 और 4 वैलेंसी क्यों है? बिकॉज कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. To complete the octet, it requires the 4 more electrons. Therefore, what is going to happen? Its valency becomes the 4 and we say that it is a tetravalent in the nature. To represent it, we represent it like this. मैम इसकी बैलेंस +4 होगी -4. बेटा ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स. नाउ कार्बन जो है इट इज ऑलवेज द प्लस. It is electropositive in the nature. Okay? Because it is going to share the electrons. अब ये बताओ कि टेट्रावेलेंट के हिसाब से any question you are having? किसी को कोई question हो यहाँ पे? मैम कोवेलेंट बॉन्ड एक बार रिपीट कर दो, थोड़ा Okay. प्रॉब्लम. Okay बेटा. Look बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है the bond is being developed by the sharing of electrons. Sometimes what happens that it is not possible that element can give its electron या उसका इलेक्ट्रॉन वो दे के अपना ऑक्टेट पूरा करे या उसको कोई ऐसा नहीं मिलता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए. At that time what they do, by the mutual understanding they share the electrons. For example, अगर मैं Cl2 बोलती हूँ तो आपके पास क्या है? 2 Cls हैं, 287 287. अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. So either of the two cannot lose the electron, even they cannot gain the electron क्योंकि इनके पास कोई ऐसा नहीं है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे. So what they do in order to stabilize, अब ये अपने लास्ट शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. लाइक इसको हम ऐसे शो करते हैं. अब what they are going to do, they are going to share the electron. Share the electron का मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया. एट द सेम टाइम इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया. अकॉर्डिंग टू दिस शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे. एंड ओवर हियर क्या हो जाएगा? देयर वोंट बी एनी चार्ज. जैसे आपने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि एक प्लस बन जाता है, एक माइनस बन जाता है. यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है किसी को. दे जस्ट शेयर द इलेक्ट्रॉन. गॉट इट दिस पॉइंट? मैम एक बार दूसरा एग्जांपल बताओगे? दूसरा एग्जाम्पल ओके. मैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेती हूँ. आप क्या लिखते हो? N2 लिखते हो, isn't it? It means आपके पास 2 नाइट्रोजन्स हो गए. अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,5 और इसकी भी 2,5. नाउ अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? +3. एंड इफ दिस वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट तो इसको भी +3 चाहिए. नाउ अगर ये अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है तो इसके पास क्या रह जाएगा? 2 2. तो ये तो अनस्टेबल हो गया. इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म.
So what they do, they just do the sharing of the electrons. ये इसमें से कुछ भी नहीं करते and they just do the sharing of the electrons. Now how they do the sharing of the electrons? दो इलेक्ट्रॉन्स, क्या बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाए मैंने. Now look what they are going to do. When there will be the bond formation, these 3 electrons are shared to this nitrogen. At the same time, they are going to share there. Now, यहाँ पे what is happening, because each nitrogen has shared the 3 electrons. हर एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बनता है ट्रिपल. आप इसको बोलो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. ओके. मैम अगर डबल होगा तो डबल बोलेंगे, डबल कोवैलेंट. हाँ बेटा, जैसे O2 हो गया, O2 के केस में डबल होता है. ओके मैम, थैंक यू. ओके बेटा, जैसे क्लोरीन हो गया तो ये सिंगल है, तो हम इसको सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं. नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन कोवैलेंट बॉन्ड. यस मैम. ओके. यस मैम. अब आपका मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन द नेचर. And second point which you people require to keep in mind is what? That carbon has a tendency of the self combination. सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि लाइक आपके पास और भी तो नॉन मेटल्स हैं, isn't it? हमारे पास तो बहुत सारे नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में, तो सिर्फ कार्बन ही क्यों अपने कंपाउंड्स बनाता है? बिकॉज कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को वी से सेल्फ कॉम्बिनेशन. इस प्रॉपर्टी का हम एक टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, दैट इज अ कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये एक कार्बन प्रेजेंट है तो ये अपने आप अपनी चेन बनाता चला जाता है. It gets joined into form a long chain, जिसकी वजह से we have a different and various large organic compounds structure. क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की. ओके. अब जो कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं, लाइक ये जितने भी मैंने ये डैशेस बनाए हैं ना, ये दिस, या यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड लिखूंगी, कोई एलिमेंट लिखूंगी, दिस, दीज आर डैशेस रिप्रेजेंटिंग द कोवैलेंट बॉन्ड. And these covalent bonds are very strong that you cannot break them. आप इन्हें easily नहीं तोड़ सकते हो. That is the reason कि आपके पास you have the plenty of the carbon compounds, and many of the carbon compounds are a long chain carbon compounds. Got it this much? इतना समझ में आया सबको? Please explain this again. Okay बेटा. We say that your carbon have a tendency of the self combination. Self combination का मतलब ये होता है कि आपको इसको किसी तरीके की कोई एनर्जी या कुछ भी एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं करना है, बट ये अपने आप ही अपना बॉन्ड बना लेता है. इस प्रॉपर्टी को हम एक टर्म दे देते हैं, that term is called as the catenation. Catenation का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन भी आप कह सकते हो, सेल्फ लिंकिंग भी आप कह सकते हो. नाउ जैसे अब ये दो कार्बन्स हैं, इसको मैंने बोला C1, इसको मैंने बोला C2, C3, C4. अब इन सब कार्बन्स के बीच में मैंने जो ये डैश लगाए हैं, this dash, this dash, this dash, these all dashes are what? They are representing the bond. तो कौन सा बॉन्ड है ये? कोवैलेंट बॉन्ड.
ये कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, that you cannot break them easily, and this is the reason that we have the long carbon chain organic compounds. Got it? Yes, ma'am. Okay. Now the next thing comes is occurrence. Occurrence of carbon. Now when we talk about the occurrence of carbon, मैम हाँ बेटा, मैम यू साइड की कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में मैम, लेकिन वो तो नॉन मेटल्स होते हैं ना। नॉन मेटल से बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में नहीं होते. इट मींस व्हाट, दैट दे आर ईदर नीदर दे आर गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स नॉर दे आर गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स. दोनों में से नहीं करेंगे. वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, वैलेंसी की बात हो रही है यहाँ पे. कोई भी आपका जब भी कोई भी कार्बन का कंपाउंड होगा ना बेटा, तो उसमें ना ही प्लस चार्ज होगा ना ही माइनस चार्ज होगा, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा when they are going to combine with any of it. जैसे आप CH4 लिखते हो, है ना? So what is going to happen? आपका एक कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है. Due to that sharing, there will be no positive charge and no negative charge. But अगर आप वैलेंसी you are going to look, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4. Got it, beta? Now, the next topic comes, that is your occurrence of carbon. Your carbon occurs in the free state as well as the combined state. Okay? When we are saying that it is occurring in a combined state, it means that it is occurring in the form of compounds with other elements. Okay? And when you are talking that you are saying that your carbon is occurring in a free state, naturally it occurs as a free state as a diamond and graphite. Okay? इन दोनों के like in the previous studies जब हम लोग करते थे, तो we used to say that you are having only the diamond and graphite which occur as the free state. But few years back there is a third form also which is a free state of the carbon, और उसको हम बोलते हैं Buckminster fluorine. Fullerene. Okay, this is the third form which occurs as the free state. ये तीनों forms जो हैं, what बेटा? बग बग मैम ये अगर कहाँ पे होता है फिर? मतलब Your voice is not coming clear बेटा. मैम बकमिंस्टर फ्लोरेंस ये अगर कैसे होता है फिर? ये अक्कर कैसे होता है? डायमंड और ग्रेफाइट हमें नेचर में मिल जाते हैं, ये कैसे This फिर? is also found in the nature in the free state. Basically जो ये है this Buckminster fluorine, it is basically a allotrope of carbon. Okay,
और इसके अंदर जो कार्बन्स होते हैं दे कंटेन द बेसिकली द 60 कार्बन आर जॉइंट टुगेदर, और वो ऐसे जॉइन होते हैं जैसे आपका एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है, like a football Yes, ma'am. structure. Okay, so it is basically a Yes. allotrope of the carbon. Got it? Yes, ma'am. Now I was telling you that in the combined state it occurs in the form of the compound in the form of the compounds with the other elements. Okay, like for example आपने बोला CO2, so यहाँ पे carbon is combined with the oxygen. आपने बोला कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का मतलब लाइक आपने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, अगेन योर कार्बन इज कंबाइंड विद द कैल्शियम एंड द ऑक्सीजन. फिर आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एवरीवेयर इज द कार्बन. फिर इफ यू हैव सेट द कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ऑल्सो, उसमें भी कार्बन होता है. वुड, cotton, wool, everything is having a carbon which is present in the combined state. Clear? Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, fine. Now, yes. Now, after this, let's start with the few covalent compounds. I have told you the single bond, double bond, triple bond. These I have told you. Single bond, double bond, triple bond, understood to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, like, come to this page number, we are having the in-text question. What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has formula CO2? CO2. So your carbon, it have what? It have the 4, 2, 4. It means valence electrons are 4. Now look students, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो या यू शो अ बॉन्ड, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट ऐसे करते हैं दैट दे शुड बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस. रीजन इसका क्या होता है कि बिकॉज आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर आप उनको पास पास में रखोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि वो रिपल्शन ज्यादा शो करेंगे. तो अगर आप सिंगल लाइक मैंने यहाँ पे कार्बन ही बनाया है, नो ऑक्सीजन आई हैव पुट, मैं कोई भी बॉन्ड नहीं बना रही हूँ, तो यू आर गोइंग टू शो लाइक दिस एट द 4 कॉर्नर. नाउ मेरे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन हैं. ऑक्सीजन की वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हु इज गोइंग टू टेल मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 286. 26, 286. 2,6. 2,6. 2,6. तो ये 2,6 हो गई. It means your each oxygen is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, this. अब हमें ultimately क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड. So what you are going to do? 1, 2, 1, 2. These are the 4 electrons of the carbon. Now मुझे ऑक्सीजन बनाना है, तो 1 oxygen I am placing over here and another oxygen I am placing over here. So this, this, this and this. अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, because
each of this element, आपका ऑक्सीजन भी और कार्बन में भी, they have shared their 2 electrons. तो ये किस टाइप का बॉन्ड बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, लाइक दिस यू रिक्वायर टू शो. अब जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसमें आपको सिंपली इतना ही शो करना था, जस्ट दिस. ओके, इतना ही आपको बनाना था. दिस ऑल आई मेड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. क्लियर दिस मच बेटा? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Anyone having any question बेटा? कोई डाउट है? मैम वो O2 को अपन ऐसे लिखते हैं ना, O डबल बॉन्ड O. हाँ, मैम फिर इसको कैसे लिखेंगे CO2 को? CO2 को ऐसे लिखते हैं बेटा. ओके, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ऐसे शो कर देते हैं, लाइक दिस. अभी आप क्लास 10th में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो इन द क्लास 10th. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. गॉट इट बेटा? बेसिकली जो हम ये डैश बना रहे हैं, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या मतलब है? 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. क्लियर बेटा? यस मैम. Yes. ओके फाइन. Now coming to the next. What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? Anyone who can tell me what is the atomic number of the sulfur? 281. 281. वो तो सोडियम हो गया बेटा. 14. सल्फर का Atomic number 14. 284. 16 होता है बेटा. सल्फर एटॉमिक 286. तो इट विल बी 286. इट मींस आपको क्या करना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स यू रिक्वायर टू शेयर शो. अब इसने क्या बोला है कि आपके पास 8 सल्फर्स हैं. तो व्हाट यू रिक्वायर टू डू? लाइक 8 सल्फर है ना, दिस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आपने 1 सल्फर और बना दिया, then again 1 sulfur. Like this you require to join the 8 sulfurs. Got this question beta? Please explain it again. देखो Yes, बेटा, ma'am. आपके सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट आपको डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है. इन द केस ऑफ दिस you require to make the dot structure of a molecule of sulfur which is having the 8 atoms of the sulfur. 8 atoms of the sulfur का मतलब क्या हो गया? S ऐसे 8 एटम्स जुड़े हुए हैं. डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं. तो मैं पहले ये वाले सल्फर के शो कर रही हूँ. 1 2 3 4 5 6. Now this sulfur 1 2 3 4 5 6. Now this sulfur 1 2 3 4 5 6. अब क्या होगा? मान लो ये वाला सल्फर है, it is going to share its 2 electron with this sulfur like this. At the same time
ये भी शेयर करेगा. सो लाइक दिस आप हर एक की क्या करोगे, जस्ट आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं. गॉट इट? इस टाइप का क्वेश्चन वी डू नॉट गेट. ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दे हैव गिवन अ क्वेश्चन. क्लियर टू एवरीवन? मैम सर्कल तो मैम जो 2 mm उन पे बनाएंगे ना, हम पूरे पे क्यों बना रहे हैं? हम शो करके दिखा दो. क्या बेटा? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन बेटा. I have shown this circle कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर रहा है. सिमिलरली ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर रहा है. सिमिलरली ये शेयर कर रहा है. लाइक दिस दे आर गोइंग टू शेयर और अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा करते जा रहे हैं. गॉट दिस? मैम तो लास्ट सफर का तो ऑक्टेट पूरा होएगा ही नहीं. बेटा इट इज नॉट नेसेसरी कि ये चेन फॉर्म में ही हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं. दे कैन बी प्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो. जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट देना है. क्यों पूरा नहीं होगा बच्चे? इसके जो सल्फर हैं इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है. अगर ये अपने शेयर कर रहा है तो ये भी तो शेयर करेगा. बोथ आर गोइंग टू शेयर. इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा. दे हैव आस्क्ड अस नॉट टू शो द बॉन्ड, they have asked us to show the dot structure. तो डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से what is going to happen कि आपको सिर्फ सल्फर 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 और हर एक के like this. अगर से सपोज मैं ये यहाँ पे शो कर देती हूँ तो what is going to happen कि सिर्फ ये वाला जो है ये शो कर रहा है. लाइक मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ तुम्हें. 1 2 3 4 5 6. अब इसके मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो करूंगी, ये कर रहा है. मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है आई एम गोइंग टू शो ओवर हियर ओनली. तो अल्टीमेटली ईच एंड एवरीवन इज गोइंग टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसको एक बारी यू पीपल ट्राई योरसेल्फ कि हर एक सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आए. एंड इफ यू डू नॉट गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स देन ऑन मंडे I will make this diagram and show you the 8 electrons. An Okay? octagon will be We can show double bond. Octagon will be formed. 8 modules. आपको सिर्फ ऑक्टेट पूरा करके बताना है. Okay. Leave this question. On the Monday I will do this question and show you how octet is going to complete over there or octet is not going to complete over there. Octagon will be formed of 8 molecules. Your voice is not coming clear. Ma'am, octagon will be formed of 8 molecules. 8 molecules में Octagon. Octagon yes, shape. That what I am saying कि it is not. I have to explain you. I have drawn like this. Otherwise इसका shape ऐसे नहीं आएगा. Okay. On Monday I just show you that how it is going to form the electrons. Okay. ओके मैम. Okay, ma'am. Then we just finish our class over here today and then we will continue on the